अस्सलाम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। राज्यसभा कार्रवाई शुरू सपदनस सती आज डिप्टी स्पीकर ऐवानस मज मौजूद मेंबरन वोनमुत वरी 2001 मज अजक दह पार्लियामेंटस पे हमल करना आमुत यथ दौरान कया जवान तो दोयम लूक शहीद सपद ये जन तिहज याद ताज़ करान तो तिमन खराज पेश करने बापत ऐवानस मज 2 मिनटन ताम खामोशी त्याज इख्तियार करना आई। Please. Honorable members, 13th December will always be remembered. Please. Honorable members, 13th December will always be remembered as the grimmest day in the history of independent India. 21 years ago, on this day in 2001, terrorists attacked this scared temple of our democracy, but intrepid security personnel displayed death-defying courage and valor to defend and protect the parliament and foiled the audacious attempt of the terrorists to strike at the very soul of our nation. The attack took toll of 10 precious lives, 2 Parliament Security Service staff, 5 Delhi police personnel, a women's Central Reserve Police Force constable, a gardener of CPWD, and a camera person from ANI. Since then, on this day, we not only remember and express our deepest sympathies for lives lost and disrupted by this dastardly act, but also reiterate our unequivocal condemnation of terrorism in all its forms and manifestations. Honorable members, terrorism threatens all people everywhere and undermines peace, stability, and security. All acts of terrorism are criminal, inhuman, and unjustifiable. This has been rightly highlighted in the country's international stand on terrorism, calling for putting a stop to classify terrorists as bad or good. Though the country remains the 8th most highly impacted country from terrorism globally, according to Global Terrorism Index 2020, the adherence to the policy of zero tolerance has led to substantial decline in terrorist attacks. Honorable members, the spectre of terrorism still haunts the humanity. Over the years, terrorist threats have assumed a lethal character, making it difficult for the nations around the globe to tackle the menace. Radicalization of youth through the internet and social media, terror financing and trafficking in drugs and arms are some of the formidable terror risks that nations face today. India is not immune from it. Honorable members, India has been a victim of terror for a long time. As members, you have a key role in strengthening the anti-terror legislative framework. As public representatives, you can articulate the issues and interests of vulnerable and sensitive groups of society that are prone to radicalization and engage them through confidence-building measures. Let us all resolve to fight collectively against all forms of terrorism and rededicate ourselves to protect the unity and integrity of our nation. I request honorable members to rise in their places and observe. लोकसभा वज़ीर-ए-आज़म मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत यदवे खुसूसी दर्ज खत्म करने विज मरकजी सरकार तरफ कया बड़ दाव करना आई, ताहम जमीनी सूरत हाल अद बरकस वुचन यमकिन आम लोग मुश्किलन मज हेन आमद। जब जम्मू कश्मीर की बात जब करें तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को की खुसूसी पोजीशन ख़त्म की गई और इसको एक 5000 साल पुरानी रियासत को एक तकसीम किया गया, तो हमने उसी वक्त ये मुतनब्बे किया था कि जो कदम आप उठा रहे हैं सही नहीं उठा रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और वक्त ने वही साबित किया। हमें नॉर्मलसी का वादा दिया गया था, हमें कहा गया था कि खुशहाली के दिन आएंगे, एक नया कश्मीर होगा, और आजकल हम देख रहे हैं कश्मीरी क्या खुश है। जब तक सियासी पहलू पर आ जाएंगे, जब आज भी तशद्दुद के वाक़ात हो रहे हैं, हर दिन किसी से किसी तशद्दुद की इत्तला हमें मिलती है, जब इस वक्त भी कई सौ नौजवान
जम्मू कश्मीर से दूर जेलों में, डिस्ट्रिक्ट बरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा में, जबकि AK रॉय में सुप्रीम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो उसको वहाँ से दूर नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, जो बिल्कुल मजहबी स्कॉलर्स हैं, मौलाना रशीद दाऊदी हैं, जनाब मुश्ताक साहब वीरी हैं, तो वो तक पाबंद सलासल है। तो ये बात यह है कि देखिए, किसी हम वाइट टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। जब सियासत है और मईशत का एक दूसरे का चोरी दामन का साथ है, जनाब वो खा भी रहा। इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आप देखिए जनाब, अब चाहिए असली आनकुर पड़ा चाहिए। अब जनाब वही कहूँगा ना जनाब, मुझे याद है जनाब जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में, मुल्क में सबसे ज्यादा है। तो 20% के आसपास इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में। तो जनाब एजुकेशन तो नाम की है, जनाब 2 यूनिवर्सिटियां बनाई गई। आप हैरान रह गए कि साउथ कैंपस में सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 और जनाब ये अभी दिल्ली के जख्म ये सहला रहे हैं। तो अब जनाब 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 खुलती फैकल्टी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन जनाब कहीं है ही नहीं। जनाब जहाँ तक एम्स है जम्मू में, अगर जो वहाँ पर स्टूडेंट्स लाए गए हैं, लेकिन कश्मीर में कहीं और स्टूडेंट्स है और कहीं और एम्स बन रहा है। तो जनाब अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की, कोई 1 लाख के करीब डेली वेजर्स, CIC वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हॉस्टल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स इस वक्त अपनी तनख्वाहों का इंतजार कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। और खासकर जनाब जो ये और आप जम्मू कश्मीर बैंक की बात देखिए, एक छोटा सा बैंक है, 2054 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किए। तो किसके माफ किए, कैसे माफ किए, तो ये इसका कोई है ही नहीं। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मईशत के इंडिकेटर्स हैं जम्मू कश्मीर की। जब मुल्क की तुलना करेंगे तो मुल्क में है ही है, जो मैंने कहा वो चुनौतियां। ये जम्मू कश्मीर की बात जनाब है। सेब जनाब जो रीढ़ की हड्डी है, आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की, तो हजारों जो सड़क है, हजारों ट्रक्स जो हैं वो वही की वही रही, और जनाब जो सही वही सड़ गया। और अब दूसरा मामला ये शुरू हो गया कि अब जनाब भाव ही नहीं है। अब जनाब जो हमारी पैकेजिंग है वो पैसे नहीं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं आ रहे। तो जनाब सैफरन हमारा था, आप भी जानते हैं, तो सैफरन की 20% सैफरन की पैदावार गिर गई है, क्योंकि पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है जनाब। जब पोल्यूशन से की वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो मामले हैं वो उससे फसल तबाह हो रही है, तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। आप देखिए जनाब 2034 का हमारा एक मास्टर प्लान है, 6 महीने से उस पर बैठा जा रहा है, क्या इसमें परिवर्तन किया जाए या नहीं किया, कोई बात ही नहीं कर रहा है। जनाब जो भी मामले हैं उन मामलों पर कोई, अब जनाब कल ही जनाब मैंने आपसे गुजारिश की, आपकी इजाजत से मैंने यहाँ मामला उठाया जनाब हेपेटाइटिस बी का। जनाब कोई सिर्फ 40% को मिल रहा है जनाब, जो नल से जल है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। वो तो बड़ा एक एम्बिशियस ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर का। 40% से कम आबादी को मिल रहा है जनाब आज की तारीख में, और उसी वजह से हेपेटाइटिस की बात हुई। तो अब जनाब हेल्थ केयर की बात देख लीजिए जनाब, सारे 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ एक पेट स्कैन है। मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में वो मुस्तकम करने के लिए कि एक पेट स्कैन लगाइए। सारे जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट है जिस पर निर्भर है लद्दाख का भी और कश्मीर का भी, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर। और जनाब वहाँ पर जो हेल्थ केयर की और उसके बगैर अंतना की जनाब, इसके अलावा जनाब तो जनाब जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनाने की बात है वो तो है ही नहीं कहीं पर। कोई इन्वेस्टमेंट मुझे कहिएगा, कोई अगर वित्त मंत्री हमें ये निशानदेही करेगी ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है, उसकी यहाँ पर निशानदेही कहे तो हम कहेंगे ये जनरेट हो गया, वो तो है ही नहीं। हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब, जम्मू में बेइत्मीनानी है। अब जनाब CSR का कोई मतलब ही नहीं है, CSR कहाँ लग रहा है, और जनाब जो मिनरल डेवलपमेंट फंड है उसका कोई है ही नहीं, कोई पता ही नहीं। जम्मू में जनाब बेइत्मीनानी है, हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब। और तब तक ये नहीं होगा, मैं कहूँगा, मैं शुभ चिंतक के तरीके से बोलूँगा, मैं कोई विरोध में नहीं कह रहा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा जनाब जब तक कि आप सियासी हुकूक जम्मू कश्मीर को बहाल नहीं करेंगे, अपना अंडू नहीं करेंगे अपने डिसीजन जो आपने 5 अगस्त के किए। जी बात है कि हमारे थैंक यू सर, एक सेकंड प्लीज जी, तुरंत समाप्त कीजिए। तुरंत सेंटेंसेस जनाब एक अच्छी बात हुई जनाब, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है वो उन्होंने कहा कि नहीं 5 अगस्त का सब सही है, ठीक था, लेकिन वो अरुणाचल से, क्या वो अरुणाचल के बारे में भी यही कहे कि ILP खत्म कीजिए, वहां का जो खुसूसी पोजीशन है वो खत्म कीजिए, वो तो होगा नहीं।
यपर आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मेंबर माहू महोत्रियन ऐवानस में मरकजी सरकार नुख्त चीनी करान ऐवानस वोनमुत यदवे मरकजी सरकार तरफ कया मामलन हवाले बड़ी दाव कर ताहम दाव थोच नजर गछान. There is an atmosphere of terror in this country with the sword of the Enforcement Directorate hanging over businessmen and high net worth individuals. The ruling party buys lawmakers for hundreds of crores, and yet members of the opposition represent 95% of lawmakers under investigation by the Enforcement Directorate. But forget politicians, they're tough, they can fend for themselves. Businessmen and high net worth individuals are soft targets. In the monsoon session, in response to a query from my honourable colleague from the JDU, Mr. Rajiv Ranjan Singh, the Finance Ministry informed this House that in the past 17 years, the ED has opened 5,422 investigations under the PMLA, but has convicted only 23 people. That is a conviction rate of a pathetic 0.5%. Since 2011, the ED has launched 1,600 investigations, 1,800 raids, and convicted only 10 people. In the supplementary demand for grants, I see that the government is asking for an additional 2,900 crores to buy land and ready-built accommodation, office accommodation for the Enforcement Directorate. The taxpayers, you and I, are paying for the ED's operations, for their prosecutions, for their investigations, for their foreign junkets. So do Parliament and public representatives have no right to ask this na khaunga, na khane dunga sarkar, who's presiding over the ED, why there is such a pathetic conviction rate of 0.5%? Is the ED's job only to harass people, or is it to actually track down and catch the perpetrators of financial crimes? What is this level of incompetence? Who's the pappu now? Yesterday took cheap pot shots at my state, the state of Bengal, with false claims of diversion of Manrega funds. To him I say this, sir, don't push your luck. I went to Mount Holyoke College. I worship Ma Kali. And I've been elected twice from a border constituency. In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. A certain Jari Booty Baba says publicly, he likes women in saris, shalwars, and also nothing at all. In the presence of the wife of a deputy chief minister of the ruling party, hand on heart, ask yourselves, had any opposition leader said anything remotely similar, you would have been baying for their blood. The ruling party does not denounce it. There is no outrage. A convicted murderer and rapist is publicly giving sermons while out on parole, and leaders of the ruling party are listening to it. You do not have the moral clarity to call out right from wrong. Who's the pappu now? People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई. सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी. This is a question that India needs to answer. Thank you very much. Jai Hind. डूरू शाहबाद में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोमो लीडर अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिनाव तत उमर अब्दुल्ला मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ ये जम्मू कशीर हिंदन लूकन प्रेथ मुमकिन सहूलियत आयतन थावनिक दाव करना आय ताहम जम्मू कशीर हिंद लूक प्रेथ रंग मुश्किलन मज हेना आमत. कोई नई बात नहीं है. जहाँ तक गलतियों की बात है वो तो स्पेसिफिकली तंजीम के वर्करों के सिलसिले में मैं बात कर रहा था. जहाँ तक इलेक्शन की आपने बात की, ये तो सही है. मतलब ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा 5 अगस्त 2019 के बाद. ये तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्शन सिर्फ बिजली सड़क पानी के मामले पे नहीं होगा. 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है उन सब चीज़ों को लेके ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और देखते हैं फिर लोग क्या फैसला करेंगे. लेकिन से हमने देखा कि महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टी जो है वो भारत जोड़ो का हिस्सा बनी. क्या यहाँ पर आप भारत जोड़ो का हिस्सा बने?
मुझे लगता है इस बात का इशारा पहले ही हमारे तंजीम के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए लखनपुर पे जो है वहाँ पे खड़े होंगे और उनके साथ थोड़ा सा चलेंगे। तो जहाँ फारूक साहब वहाँ सब कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर, तो जहाँ फारूक साहब चले उसके बाद मुझे नहीं लगता हमसे ये सवाल करने की जरूरत है। सर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इन चीजों का जवाब सही लेवल पे दिया जाएगा। कुपवारा में मेरे जो साथी हैं वो इस पे जवाब सर अरुणाचल एक बदकिस्मत बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं पूरी तरह से वापस नहीं गए, और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि वाजपेयी साहब की जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम अपने पड़ोसी बदला नहीं सकते हैं। उनके साथ बेहतर रिश्ते जरूर बना सकते हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। इसमें चीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छा रिश्ता इस मुल्क के साथ बनाए। और मेरी समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए अब 5 अगस्त के बाद, और 8 साल हो मतलब 4 कितने साल हो गए, 4 से ज्यादा साल हो गए जब से गवर्नर रूल लगा, तब से आज तक क्या ये एक बार भी नहीं सीख चुके हैं कि सही लिस्ट निकालने के लिए और इन स्कैम्स को रोकने के लिए उनको क्या करना चाहिए? इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं लेकिन सिलसिला ठीक नहीं होता। उनको सिलसिला अपना ठीक करना चाहिए ताकि इन इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज पुलवामा में जराई इबलाग सहित कत करान वोनमुत ज वादी नौजवान जदको तो बेरोजगार करने हवाल अकिस मनसूबबंद साजिश तहत काम करने यवान। देखिए, ये जो सरकार है, यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, ये बहुत ज़्यादा जो है दावे करते हैं, करप्शन फ्री और साफ़ व शफाफ निज़ाम की बात करते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। रोज़ छापे डाले जाते हैं बिजनेसमैन के यहाँ, रोज़ लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है करप्शन के नाम के ऊपर। और आपने देखा होगा कि यहाँ जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है, नौजवानों के ऊपर मॉनिटरिंग चलती है, उनको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। पिछले 2019 के बाद 4-5 साल से जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें धांधलियाँ होती नहीं है, बल्कि धांधलियाँ की जाती हैं, जानबूझ के धांधलियाँ की जाती हैं। नौजवान मेहनत करता है, इम्तिहान में हिस्सा लेता है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें धांधली हुई है। तो ये कसूर किसका है? ये यहाँ की हुकूमत का कसूर है। सज़ा तो उनको लेनी चाहिए पर नौजवानों को सज़ा देते हैं। सारा जो है प्रोसेस उसको स्क्रैप करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। आज अब फायर सर्विस की बात है, इससे पहले सब इंस्पेक्टर की बात, FAA की बात, जल शक्ति की बात, जहाँ भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधलियाँ की जाती हैं जानबूझ की, ताकि उसको कैंसिल किया जाए और यहाँ के नौजवानों को और ज़्यादा मायूसी की तरफ धकेला जाए। क्योंकि यहाँ का नौजवान पहले ही तंग पड़ा हुआ है, पहले ही मुसीबत में है, पहले ही उसको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं मगर नौकरियों के दरवाजे उसके लिए बंद किए। कांग्रेस पार्टी रियासती सदर वकार रसूलन गुलाम नबी आजाद सद बयान मजम्मत करान वोनमुत गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी हंदिस इशारस पे बयानबाजी करान। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बयान दिया, कहा कि मैंने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट लिखी थी कि कुछ मिनिस्टर जो है मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व है। एक बेबुनियाद इंटरव्यू उसने दिया, हालांकि वो खुद था, अगर वो नेशनलिस्ट अपने आप को बोल रहा है, वो खुद चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, यूनिफाइड कमांड उसके अंडर थी, होम मिनिस्ट्री उसके अंडर थी, एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर था, वो खुद एक्शन ले सकता था। क्योंकि टेररिज्म में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, मिलिटेंसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। अगर
उसको एक्शन, अगर उसको पता था कि कोई इन्वॉल्व है तो उसको अंदर डाल के उस पर एक्शन करना चाहे था। इस वक्त जो वो बदनामी करना चाहता है, बीजेपी को मदद करना चाहता है, अपने बयान से बीजेपी को फायदा दिलाना चाहता है, वो चीज ये दर्शाती है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है और कांग्रेस को डैमेज करना चाहता है। हालांकि 40-45 साल वो कांग्रेस में रहा, हर पोस्ट उसको मिली। तो ये जो बयान दिया है ये मनगढ़ंत बयान है, और अगर उसने नहीं एक्शन किया है तो उसको वो फिर खुद इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो डीडीसी मेंबर डाडसूर अवतार सिंह त्रालियन आज महकमे बिजली हंद सब डिवीजन त्रालुक दौर कर्मुत, यथ दौरान तमो मुतलिक जिम्मेदारन सत बिजली हवाले कत कर। यल जन तमो अत मौके पे वोन जिम्मेदारों तरफ तमन यकीन दिन आमद शेड्यूल मुताबिक सारफन बिजली फराहम करने, ताहम तमो लूकन अपील कर्म तम गन बिजली हंद सही इस्तेमाल अमन मज अन युत जन तमन मुश्किल वेतरन पेन। मकसद एक ही है कि भाई जो लोग परेशान हैं इस बिजली के बहरान से, उनकी उस चीख पुकार को देखते हुए मैंने आज मिजाज बनाया था कि मैं दोनों तीनों सब जो डिविजन्स हैं इन पे जाके पर्सनली देखूं कि लोगों को क्या दिक्कतें हैं। जहां तक पावर डिपार्टमेंट का सवाल है, कल हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी काउंसिल की मीटिंग थी, वहां पे भी उन्होंने ये बताया कि जो शेड्यूल है 8 आवर्स का, 8 घंटे का अनमीटर्ड एरिया में, उस शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए इन्होंने आज भी हमको कमिटमेंट की है कि उसको हम मेंटेन करे हुए हैं। लेकिन सिर्फ इलाका जात में क्या होता है कि जब ओवरलोडिंग होती है, ओवरलोडिंग की वजह से इनको कुछ फीडर्स बंद करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि उस शेड्यूल में कमी या पेशी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मैं आपके इस माध्यम से आज के इस विजिट से मुझे यही लगा कि अपने लोग भी, मुझे पता है इस ठिठुरती सर्दी में बिजली की काफ़ी आवश्यकता रहती है, लेकिन मैं सार्फिन से पुरजोर अल्फाज में गुजारिश भी करूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि वो जो गैजेट बिजली के इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बॉयलर है, हीटर है, बाकी चीज़ें हैं, उनको आप जुडिशियसली इस्तेमाल करो। एक गैजेट एक टाइम पे लगाओ, दूसरा गैजेट दूसरे टाइम पे लगाओ, ताकि आपको बिजली कम से कम बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मिले, गर्म पानी के लिए मिले। इसमें लोगों का, मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो ये पॉपुलेशन है तराल इलाके की, उन्होंने ही इसमें इनिशिएटिव लेना है। बिजली डिपार्टमेंट एज सच इसमें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि सार्फिन जिसको 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है वो 4 किलोवाट 5 किलोवाट की बिजली चलाता है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई अपने उन इस्तेमाल शुदा चीज़ों को तरीके से इस्तेमाल करें, और सरकार आपको एश्योर करती है। आज मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक कहना चाहता हूं अपने त्राल इलाके के लोगों से, चाहे वो डाडसरा ब्लॉक के हैं, त्राल के हैं या आरीपल ब्लॉक के हैं, कि 8 घंटे के शेड्यूल के बरक्स आपको बिजली में बिल्कुल कमी नहीं होगी आने वाले। खी जोगीपुरा कोलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में चनाब के वैसे हवाले कई फिर हुकाम निजान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कहाँ कदम तुलना आमुत यमकिन आम लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मकमी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गन संजीद कदम तुलन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। जोगीपोरा अस मसल आब चन क्या आब अहन जनाब अस गई वनकस वरी आब आसनस और वनकस गई बिल्कुल आब आसनस 6 रेत गो योर जनाब कंटिन्यू वन वोत एक्जन साहबस निश अशर साहबस निश तमो वोन विल विल करो हु करो ये तथ बोरवेल मंजूर गोमुत अत 60 लाख रुपये आमत मगर तथ ना करो की तुम दो ठेकेदार छुन कर ठेकेदारस नोटिस कड़ित हेकिन ठेकेदार चेंज कर मगर कहीं ना कर मगर रोड ये वंद काल सी कईहन रेतन आमद रफ्त बाबत बंद सपदन यम वादी हंद रबत जिले पुंछ सत मुनक़ता सपदन तत शुपियन जिले सत तोलुक थवन वालों अवामी नुमाइंदों तरफ सरकार मांग करना आमद मगल शहर पे टनल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन युत जन वंद कालस दौरान दशवन खतन हंदन लूकन मुश्किल वेतरन पेन।
मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारा पीएम सर है, हमें पूरा विश्वास है उस पे, श्री नरेंद्र मोदी सर पे पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह देखा जाएगा डेवलपमेंट और काम जिस तरह पे देखा जाएगा, यहाँ पे उसका विजिट है मार्च में, और 1 जनवरी में यहाँ पे जेपी नड्डा सर का विजिट है, फरवरी में जो हमारा होम मिनिस्टर सर है श्री अमित सर जी का विजिट है, और मार्च में यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी सर का विजिट है, यहाँ पे जो हमारा ऑल इंडिया पीएम है, और बहुत अच्छा है, हम तारीफ करते हैं हम कि उसको बहुत बड़े प्रोजेक्टों का यहाँ पे इनाग्रेशन करनी है, और हमें ये भी इंतज़ार है यहाँ जो टेंडर है मगोर रोड की, शायद उसका भी यहाँ पे इनाग्रेशन हो जाएगा। देखो इस रोड का जो फ़ायदा है, जो यहाँ पे बेरोज़गारी है, ये एक बैकवर्ड इलाका, एक देहाती इलाका है, यहाँ का जो यूथ है वो अपना रोज़गार यहाँ पे चलाता है। और राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करेंगे और शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जो राजौरी और पुंछ के लोग हैं जो बीमार पड़े हैं बेचारे, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे SMH हॉस्पिटल और सोवरा हॉस्पिटल में होता है, उनको ये रोड आसान होता है। और यहाँ के लड़के भी, और हम अगर बाबा तो नाजरीन खबरनामा गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरन हंद सिलसिल बदस्तूर जारी, मे दियो इजाजत खुदा।